નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે રાજસ્થાનના અજમેરથી. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી દિયા કુમારી અજમેર પ્રવાસ પર હતા અને જ્યાં તેઓ ગંદા પાણીમાં ચાલીને સ્વસ્તિક નગરમાં આપત્તિગ્રસ્ત જે પરિવારો છે તે લોકોને મળ્યા. બોરાજ તળાવનો પાળો તૂટવાના કારણે સ્વસ્તિક નગર વસાહતની પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે, જ્યાં નાયબ મુખ્યમંત્રી દિયા કુમારી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે અજમેર પહોંચ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે નાયબ મુખ્યમંત્રી ગંદા પાણી અને ગંદકીમાં ચાલીને અસરગ્રસ્ત લોકોના ઘરોની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને તેમની સમસ્યાઓ પણ સાંભળી. અને એની સાથે સાથે જણાવી દઈએ કે વહીવટી તંત્રને ટૂંક સમયમાં જ યોગ્ય પગલાં લેવા માટે નિર્દેશો પણ આપ્યા હતા. તો બીજી તરફ વાત કરીએ હવે આપણે રાજસ્થાનના જયપુરની. તો જયપુરમાં 59મા આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ નિમિત્તે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ઉલ્લાસ નવ ભારત સાક્ષરતા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જણાવી દઈએ કે મંત્રી મદન દિલાવરે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેમણે કહ્યું કે ડિજિટલ યુગમાં નિરક્ષર રહેવું એ કલંક જેવું છે. એક સાક્ષર વ્યક્તિ આખા પરિવારને પ્રગતિના દિશામાં આગળ લઈ જઈ શકે છે. એક શિક્ષિત વ્યક્તિમાં સમાજને સુધારવાની મહત્વપૂર્ણ શક્તિ હોય છે. તેથી જ સમાજ માટે દરેક વ્યક્તિ શિક્ષિત હોય તે જરૂરી છે. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં શિક્ષણ મંત્રી મદન દિલાવરે પ્રખર રાજસ્થાન મોબાઈલ લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ રાજસ્થાનના સુમેરપુરની. તો સુમેરપુરમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી જોરારામ કુમાવતે જણાવ્યું હતું કે સરકાર જવાઈ ડેમ રિચાર્જ યોજના અંગે ગંભીર પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તાજેતરમાં તેઓ મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માને મળ્યા હતા, જેમાં આ યોજના અંગે વિગતવાર ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. મંત્રી કુમાવતે જણાવ્યું હતું કે મહી ડેમમાંથી જવાઈ ડેમ સુધી જે પાણી લાવવા માટે 15 કરોડ 60 લાખ રૂપિયાનો ડીપીઆર તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ યોજના પર લગભગ 7,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ એક મોટી યોજના છે, તેથી તેને પૂર્ણ કરવામાં સમય લાગશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જવાઈ ડેમ ઓવરફ્લો થવાના કારણે પાલી, જાલોર અને જિલ્લાના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે મોટો ફાયદો થશે અને આ સાથે પીવાના પાણીની પણ સમસ્યામાંથી રાહત મળશે. छोड़ा है तो उससे भी वो जो इनके जो कुएं रिचार्ज होंगे. ऐसे इस बार पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और भगवान का आशीर्वाद है. पूरे राजस्थान में फसलें भी बढ़िया है, पानी भी बढ़िया बरस रहा है, सारे बांध भी भर गए, नदी नाले भी उफान पे चल रहे हैं और तालाब वालाब सारे भर गए. तो किसानों में भी खुशहाली है. मनुष्य के पीने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो गई और पशुओं के पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी बरस गया. तो भगवान को धन्यवाद है कि आपने सबकी खुशहाली के लिए ये काम किया. जवाई पुनर्भरण योजना को लेकर आपने एक योजना निकाली है, उसको लेकर क्या कहोगे? जवाई पुनर्भरण के लिए हम बार बार प्रयास करते रहते हैं. जवाई में पानी कहाँ से आना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, इसके लिए जब जब अवसर मिलता है तो हम प्रयास करते. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ રાજસ્થાનના જયપુરની. તો આ સમાચાર જયપુરથી છે, જ્યાં જણાવી દઈએ કે મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ બિરલા ઓડિટોરિયમ ખાતે આયોજિત રાજસ્થાન મસાલા કોન્ક્લેવ 2025નું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને ચેકનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી સમારોહને સંબોધિત કર્યો હતો અને જણાવી દઈએ કે મસાલા ઉદ્યોગના વિકાસ, ઉત્પાદન વધારવા, માર્કેટિંગ સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા અને ખેડૂતો અને વેપારીઓના હિતમાં સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિવિધ યોજનાઓ અને નીતિઓ વિશે માહિતી આપી હતી. भी जिला हो, अगर उसमें हमारे जिले का उद्योग बढ़ेगा, उसकी डीजीपी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की डीजीपी बढ़ेगी. इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. मंडी यार्ड और विपणन की आधार सुविधाओं के लिए 231 करोड़ रुपए का निर्माण कराए जाने का काम हम कर रहे हैं. किसानों को मंडी यार्डों तक उपज लाने की सुविधा के करीब 86 करोड़ रुपए से 100 संपर्क सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है. यही नहीं, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी सरकार ने आपके लिए 704 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित किए हैं. हम फसल बीमा की योजना भी हम लागू लगातार हम कर रहे हैं. और आपने देखा, आप अभी कह रहे हैं, आपको अभी झुंझुनू के अंदर कार्यक्रम हुआ था,
वो भी हमने आपके खाते में सीधे डालने का काम किया। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपको ध्यान देते हुए हमारे खेत की जो गिरदावरी है वो आपको करनी है। हमने एक छूट और दे दी है, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। गिरदावरी के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपने खेत की गिरदावरी स्वयं करेंगे और स्वयं बताएंगे कि हमारे इस खेत में ये जींस को हमने बोया है। अब उस पर भी आधारित नहीं है, जिससे आपके खेत का मालूम पड़ जाए कि आप क्या इसमें बो रहे हैं। अगर बताया अभी, हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर आपने फसल बोई, बारिश हो गई, अगर वो फसल उगी नहीं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि हमारे किसान को उसका भी लाभ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं किसान को पूरी तरह से लाभ मिले। हम हर तरह से किसान को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारा मसाला उद्योग हो, चाहे हमारा डेयरी उद्योग हो। हम डेयरी से भी किसान को जोड़ना चाहते हैं और इसलिए आपने देखा होगा हम किसान क्रेडिट के साथ साथ, कार्ड के साथ साथ, हम गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन जरूर मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि किसान का अगर एक सिर्फ खेती का काम होगा, उस किसान को दिक्कत होती है, उसके परिवार का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान हमारा या तो मसाला उद्योग से जुड़े या डेयरी उद्योग से जुड़े। अगर इन दोनों उद्योगों से कोई किसान भाई मेरा जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मजबूत होगी, मजबूत होगी। क्योंकि किसान खेती पर निर्भर जब रहता है, लागत उसकी ज्यादा आती है, उत्पादन उसका कम आता है। हम एमएसपी पर भी खरीद रहे हैं। आपने देखा कि लगातार हम गेहूं इस बार हमने पिछली साल 125 रुपए हमने किसान को बोनस दिया था, अब की बार हमने 150 रुपए दिया। और आपने देखा होगा देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसपी पर अगर गेहूं खरीदा है तो वो राजस्थान की सरकार ने खरीदा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आप या तो डेयरी से जुड़े या मसाला उद्योग से जुड़े। लगातार डेयरी में हम किसान के लिए 5 रुपए लीटर का, हम 1 लीटर पर 5 रुपए देने का भी काम कर रहे हैं और किसान को बिना ब्याज का 1.5 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। उसमें कोई गारंटी नहीं, उसका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो 1.5 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड उसका बन जाएगा। हमने ये भी किया है कि किसान का अगर पशु बीमार होता है तो किसान की चिंता बढ़ जाती है, किसान उससे परेशान होता है, क्योंकि पशु धन भी है, वो भी हमारा धन है। अगर किसान के पशु को दिक्कत आती है तो उसमें भी परेशान, उसके लिए भी हम वेटनरी यूनिट हमने छोड़ी हैं। आप फोन करेंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं अगर किसान कहीं, अगर हमारा चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय दूर है तो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा तो वो वहां लेकर के जाएगा। हमने कहा है, इसलिए हमने उसके लिए वेटनरी एम्बुलेंस की है कि आप तुरंत फोन करिए, किसान के द्वार पर आएगी, उसका इलाज करेगी, डॉक्टर वहीं रहेगा। अगर आवश्यकता होगी तो वो अपना साधन मंगाएगा और उसको बड़े अगर चिकित्सालय में ले जाना पड़ा है तो वहां वो लेकर। સમાચારોમાં હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશની, તો ઉત્તર પ્રદેશના બલિયાના સમાજવાદી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા રામ ગોવિંદ ચૌધરીએ કહ્યું છે કે તેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે ભીષ્મ પિતામહની જેમ, જ્યાં સુધી અખિલેશ યાદવને મુખ્યમંત્રી અને પછી વડાપ્રધાન બનાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ પૃથ્વી પર જ રહેશે. અને આ નિવેદન તેમના અટલ સંકલ્પ અને પક્ષ પ્રત્યેના દૃઢ સમર્પણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું છે કે આખા દેશમાં અખિલેશની લોકપ્રિયતા વધી છે. જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે આપણે વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી સિવાય કોઈનું કામ દેખાતું નથી. આ પ્રશંસા તેમના માટે ખાસ આદરનો વિષય પણ છે અને સપાના નેતૃત્વમાં અને સંભવિત રાષ્ટ્રીય ઉદયને પ્રકાશિત કરે છે. રામ ગોવિંદ ચૌધરીએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે સપાના ભાવિ રાજકારણમાં તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય
અખિલેશ યાદવને મુખ્યમંત્રીથી વડાપ્રધાન બનાવવાનો છે અને આ રાજકીય જુસ્સાની નજર સમગ્ર સપા અને યુપી રાજકારણ પર ટકેલી છે. સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ આપણે વાત કરીએ નેપાળની, તો નેપાળમાં યુવાનો દ્વારા સોમવારે સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને જે અચાનક હિંસક બની ગયું. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સરકારે લાદેલા પ્રતિબંધ સામે યુવાનોના નેતૃત્વમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યો હતો. જણાવી દઈએ કે કાઠમાંડુ પોસ્ટ અનુસાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 19 લોકોના મોત થયા છે. આ ઉપરાંત લગભગ 200 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી 22 લોકો ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. રાજધાનીના કેટલાક ભાગોમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ તંગ છે અને અધિકારીઓએ એક દિવસ માટે કર્ફ્યુ લાદ્યો છે. રાજધાની કાઠમાંડુમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સહિત હજારો યુવાનોએ વહેલી સવારે મોતીઘર અને બાણેશ્વર વિસ્તારોમાં કૂચ કાઢી હતી. વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ સરકાર પર ગંભીર ભ્રષ્ટાચાર અને ફેસબુક, વોટ્સઅપ અને એક્સ સહિત 26 સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ મૂકીને જે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. અને આ દરમિયાન વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓએ સંસદ ભવનની નજીક પોલીસ બેરિકેડ્સ તોડી નાખતા વિરોધ હિંસક બન્યો. શરૂઆતમાં સ્થાનિક પોલીસે વિરોધીઓને રોકવાનો માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર ગઈ ત્યારે સેના તૈનાત કરવામાં આવી. સેના હાલમાં આ વિરોધ પ્રદર્શનને રોકવા અને યુવાનોને રોકવા માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. નેપાળના કાઠમાંડુ, કાસ્કી, રૂમ્પાદેહી જિલ્લો અને સુનસારી જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જણાવી દઈએ કે અન્ય કેટલીક જગ્યાએ પણ કર્ફ્યુ લાદવામાં આવી શકે છે. સમાચારોમાં હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ તો પિતા સુરક્ષા અને વિશ્વાસની સૌથી મોટી દિવાલ ગણાતો શબ્દ. દીકરીઓ પિતાના છાયા નીચે આકાશમાં ઉડે છે, પરંતુ મુઝફ્ફરનગરમાં એક પિતાએ જ આ સંબંધને શરમજનક બનાવ્યો છે. લગ્નના વિવાદે દીકરીનો જીવ લઈ લીધો છે. જ્યાં જણાવી દઈએ કે 19 વર્ષની આરજુએ પોતાના પિતાના હાથે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. આ કિસ્સો ફક્ત એક દીકરીના મૃત્યુની વાર્તા નથી, પરંતુ તે વિચારનો અરીસો છે જ્યાં દીકરીઓના સપનાઓનું કોઈ મૂલ્ય નથી. આરજુના મૃત્યુએ ફરી એકવાર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે, દીકરીઓને પોતાની રીતે જીવન જીવવાનો અધિકાર ક્યારે મળશે? જુઓ રિપોર્ટ અને સમજો કે આખો મામલો શું છે. खून का रिश्ता, खून से लथपथ, बाप बना कातिल, बेटी पर बरसी मौत, पिता की जिद बेटी की सांसों पर भारी, प्यार और इज्जत की जंग बनी मौत का सबब. मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के किदवई नगर मोहल्ले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हो गई. यहाँ रहने वाले गयूर ने अपनी 19 वर्षीय बेटी आरजू का गला दबाकर कत्ल कर दिया. वजह थी शादी को लेकर पिता और बेटी के बीच कई दिनों से चल रहा विवाद. आरजू अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन गयूर को बेटी का फैसला मंजूर नहीं था. घर की चारदीवारी में कई बार बहस हुई, कई बार रिश्तेदारों के सामने भी तकरार बढ़ी, लेकिन इस बार गयूर का गुस्सा खून में बदल गया. हत्या के बाद गयूर को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर कानून का डर. वो सीधा थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस थाने खालापार में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली. उसने अपना जुर्म कबूला. पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है. इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई कानूनी करी जाएगी. मोहल्ले में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई. पड़ोसी गयूर के इस कदम से हैरान है. उनका कहना है कि आरजू पढ़ाई में तेज और समझदार थी. उसकी मुस्कान मोहल्ले की रौनक थी, लेकिन बाप की जिद और बेटी की मर्जी, इन दोनों की टकराहट ने उसकी जिंदगी छीन ली.
मुजफ्फरनगर के खालापार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पिता ने अपनी 19 साल की पुत्री आरजू की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो पिता है वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस को जाके पूरी घटना बताई। क्योंकि जो आरजू है, आरजू की जो शादी 1 महीने बाद होने वाली थी और उसी शादी को लेकर लगातार जो पिता है और जो पुत्री है उनमें विवाद चल रहा था। आरजू चाहती थी कि जहां पर उसकी शादी हो रही है वहां ना होकर कहीं और शादी हो, और इसी चीज़ को देखते हुए जो पिता है उसने अपनी पुत्री का गला दबाया और गला दबाने के बाद थाने पहुंचाया और थाने में पुलिस ने उसे तमाम बातें जानने के बाद जो पुत्री है उसके जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब जो पिता है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर का ये मामला सिर्फ एक बेटी की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच का आईना है जहां बेटियों के सपनों की कोई कीमत नहीं, जहां पिता की जिद, समाज की परंपरा और रिश्तों का बोझ बेटी की जिंदगी से भी बड़ा मान लिया जाता है। आरजू की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बेटियों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ચાલો હવે આ તરફ આગળ આપણે વાત કરીએ એક ફારુખાબાદની તો દવા લેવા ગયેલી દીકરીને ક્રૂર લોકોએ મોતની દવા આપી છે, જ્યાં જણાવી કે તેને પેટ્રોલ છાંટીને જીવતી સળગાવી દેવામાં આવી છે। ફારુખાબાદની આ ઘટનાએ માનવતાને શરમજનક બનાવી દીધી છે। પીડાદાયક મૃત્યુ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ગુસ્સો અને શોકનું વાતાવરણ છે। એક જ પ્રશ્ન છે, દીકરીઓ ક્યાર સુધી આ રીતે કાવતરો અને ક્રૂરતાનો શિકાર બનતી રહેશે અને ગુનેગારો કાયદાના ચુંગાલમાંથી ક્યારે છટકી જશે? ન્યાયની આશામાં હવે આ પરિવાર ક્રૂર માટે કડક સજાની વિનંતી કરી રહી છે। જોવા એક ખાસ રિપોર્ટ। इंसाफ की पुकार, पुलिस पर सवाल, दरिंदों से सामना, जिंदगी का खात्मा, बच्चों की आंखें नम, मां को खोने का गम, गांव में मातम का माहौल, दोषियों को फांसी देने की मांग। फर्रुखाबाद का जहानगंज थाना क्षेत्र, जहां से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। गांव झिझोकी के शिक्षा मित्र बलराम सिंह चौहान की बेटी निशा 33 साल की उम्र में अपनी जिंदगी हार गई। उसकी मौत कोई सामान्य हादसा नहीं थी, बल्कि दरिंदों की हैवानियत का नतीजा थी। सन 2013 में निशा की शादी मुहम्मदाबाद क्षेत्र के जल्लापुर गांव निवासी अमित सिंह चौहान से हुई थी। पति अमित दिल्ली में नौकरी करते हैं और निशा अपने 2 मासूम बच्चों 11 साल के रुद्र और 8 साल के शौर्य के साथ फतेहगढ़ के नेकपुर 84 में रहती थी। 6 दिसंबर को निशा दवा लेने दरियाबगंज गांव गई थी, लेकिन वो कभी लौटकर घर नहीं आ पाई, क्योंकि रास्ते में उसका सामना उन दरिंदों से हो गया जिन्होंने उसकी जिंदगानी ही छीन ली। आरोप है कि नगला जैतपुर गांव का दीपक अपने 5 साथियों के साथ मिलकर गांव कुंदनपुर गणेशपुर के स्कूल के पीछे बाग में घात लगाकर बैठा था और जैसे ही निशा वहां से गुजरी उसे पकड़कर पेट्रोल डाल दिया और आग के हवाले कर दिया। वहीं जिंदा जलती हुई निशा की चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। वो उसे तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिता बलराम सिंह को डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह चौहान का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई है। भागते भागते पिता अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने निशा को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि तुरंत उसे सफेई मिनी पीजीआई रेफर करना पड़ा, जहां 90% तक झुलस चुकी निशा जिंदगी की जंग आखिरकार हार गई। पोस्टमार्टम के बाद जब बेटी का शव गांव पहुंचा तो पूरे माहौल में मातम पसर गया। मां की चीखें और बच्चों के आंसू देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। कैसे घटना क्या हुई यहाँ पे? घटना ये हुई कि हमारी लड़की दरिया में दवाई लेने
गई थी, तो रास्ते में ही ट्रैफिक जाम दे दिया गया। जब डॉक्टर के यहाँ पहुँची जली हुई पहुँची। अच्छा, जी। कब शादी हुई थी इनकी? 11 जुलाई 2013 को। 2013। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम झुझकी उठकर जाना जिला फुटबॉल थाना में। अच्छा, क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारी लड़की को न्याय मिले जिन्होंने जलाया है। अच्छा, ठीक है। परिवार का साफ कहना है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी ही चाहिए, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना पेश आई है, जहां निशा अपने मासूम बच्चों की दवाई लेने घर से निकली, लेकिन दवाई लेकर घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने आशंका जताई और फिर परिवार के सभी सदस्य इधर उधर उसे ढूंढने लगे। वहीं कुछ घंटों बाद निशा का झुलसा हुआ शरीर अस्पताल में पड़ा था और परिवार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ આપણે વાત કરીએ તો ઓનલાઈન વેશ્યાવૃત્તિના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે। જે આપણે વાત કરીએ તો થાણા એકાએ દરોડા પાડીને બે હોશિયાર ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે। તેમના કબજામાંથી ગેરકાયદેસર હથિયારો, મોબાઈલ ફોન, નકલી કાર્ડ અને કાર પણ મળી આવ્યા છે। તેની સાથે જ આખી વેશ્યાવૃત્તિ ગેંગનો નાશ પણ કરવામાં આવ્યો છે, અથવા એવું કહી શકાય કે એક ક્લિકથી મૃતદેહો વેચાઈ રહ્યા હતા, परंतु હવે પોલીસે વર્ચ્યુઅલ દલાલોના રમતનો અંત લાવી દીધો છે। फरोशी का रैकेट बेनकाब, पुलिस ने किया पर्दाफाश। ऑनलाइन बुकिंग, एडवांस मनी, 1 क्लिक कस्टमर, कार से सप्लाई, डिजिटल जाल, एडवांस पैसा, ग्राहकों की पसंद पर गंदा धंधा, 2 गिरे बाकी पर शिकंजा बाकी, कानून की रडार पर गैंग के खिलाड़ी। फिरोजाबाद की थाना एका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, खुफिया सूचना पर दबिश और गिरफ्त में आए 2 ऐसे अपराधी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेक्स रैकेट चला रहे थे। खरीद फरोख्त का नया ठिकाना बना इंटरनेट पर एक क्लिक करते ही जिसमें बिक रहा था। पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्जे से ऐसे सबूत बरामद किए जिन्हें देख पुलिस भी सन्न रह गई। खरीद फरोख्त का नया ठिकाना। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों के पास 6 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, अवैध असलाहा और कारतूस और वह स्विफ्ट कार जिससे यह धंधा फल फूल रहा था, सब कुछ बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में यह भी बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी गूगल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय सेक्स वेबसाइट से ग्राहकों तक पहुंचते थे, उनकी पसंद की महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें भेजते थे, एडवांस भुगतान लेते और फिर अपनी कार से ग्राहक तक लड़कियां पहुंचा देते थे। यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। न सिर्फ फिरोजाबाद बल्कि अंतर्राज्यीय स्तर पर भी इनका जाल फैला हुआ था। ऑनलाइन नेटवर्क की आड़ में यह खेल चल रहा था। यहाँ के कुछ लड़के जो है वो ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने में इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा आज जब इन 2 लड़कों को घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिनके नाम के गुलशन और रोहित हैं, एका क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो इनके पास से जिनके मोबाइल जब चेक किया तो उसमें पुलिस को ये पता चला कि ये लोग ऑनलाइन जो है सेक्स रैकेट चलाने में सहयोग करते हैं। ऑन ऑर्डर जो है बुकिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं ऑनलाइन और उसको जो है अपने स्वयं के यूज़ करते हैं तथा लोगों में बांटते हैं। सीनियर एसपी के निर्देशन में एएसपी ग्रामीण और सीओ जसराना के नेतृत्व में थाना एका पुलिस टीम ने शनिवार को यह कार्रवाई की। दबोचे गए दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस के दबदबे के आगे अपराधियों के खेल का खात्मा हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर धारा 227/25 और 228/25 धारा 143 2 BNS 3/25 आर्म्स एक्ट और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े बाकी चेहरों की भी तलाश कर रही है। फिरोजाबाद पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय सेक्स रैकेट को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस गंदे कारोबार में और कौन कौन शामिल है और कब होंगे बड़े नाम बेनकाब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.